Assalamu alaikum students. Last time we have done the circles. Today we will do the ellipse. Anyone may convey the message to Zafir Khan. He must write his ID. Otherwise, he will not be allowed. Okay. So today we are doing ellipse. The shape of the ellipse is just like that. Oval shape. This is the ellipse. This is called the major axis. From here to here is called the major axis. And this is called the minor axis. This one is the major axis. And this one is called the minor axis. Major axis and minor axis. Sayyid Muhammad Hassan. So where the two axes are intersecting each other, this is called the center. This is the center. And the point center is the point where the major and minor axes are intersecting each other. This is the midpoint of the major axis as well as the minor axis. This is the midpoint of the major and the minor axis. This is the major axis, this is the midpoint of the major axis. This is the minor axis, this is the midpoint of the minor axis. And where the 2 points where the ellipse
is intersecting the major axis. So these points are called vertices. This is one vertex. This is the other vertex. So vertices. Vertices is the plural of vertex. Marine shape. Okay. So this is the major axis. Major axis is the distance between the two vertices. And the midpoint of the major axis is called the center. And a line perpendicular to the major axis and passing through the center will be the minor axis. That will be the minor axis. Okay, there is another point between the center and the vertices here as well as on the other side. This is called focus. This is another focus. And the plural of the focuses is called foci. So there are two foci. There are two vertices. One center, and there are two endpoints of the minor axis. So these are the some terminologies which are related to the ellipse. And what is the definition of the ellipse? Definition of the ellipse. Ellipse is the locus of all loci of all the points. Ellipse is the locus of all the points which are moving in such a way that their distances, that the sum of the distances from the two fixed point is always constant. So this is the point. If it is moving on this in this way, the distances from the two fixed point. This is the two fixed point. This one, this distance and this distance. These are the two fixed points. The sum of the distances. This is the point P. XY. Suppose this point is moving in such a way that the distances, sum of the distances from two fixed point always be constant. ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है. इन दोनों को ऐड करें d1 प्लस d2, ये हमेशा ये पॉइंट यहां मूव करेगा तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनका सम. फिर ये पॉइंट यहां मूव कर जाएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सम ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस. फिर ये पॉइंट यहां मूव किया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का सम. ऑलवेज बी सेम. Always be same. So in this case, an ellipse is traced. Ellipse इस तरह ट्रेस होता है. हम इस तरह बना सकते हैं. अगर हम एक कोई वुडन बोर्ड ले लें और यहां पर हम दो नेल्स फिक्स कर दें. यहां पर दो नेल्स गाड़ दें. उसके बाद एक धागा लें, बड़ा सा धागा ले लें और इस तरह एक धागे में यहां पर एक और पेंसिल लगा दें और फिर उस धागे की दूसरा सिरा यहां बांध.
अब इस धागे को हम मूव करते हैं, इसको खींच के रखना है और ये हम ये मूव करते हैं यूं, तो ये हमारे पास एक पेंसिल से एक एलिप्स ट्रेस हो जाएगा। पेंसिल से एक एलिप्स ट्रेस हो जाएगा। यूं हम यहाँ धागा, एक यहाँ धागा बांध दिया, एक यहाँ ढीला सा धागा बांधना है बड़ा सा, और उसके बीच में यहाँ कहीं पेंसिल लगा देनी है और फिर उसको हमने यूं मूव करना है उसको खींचते हुए, तो ये हमारे पास जो ट्रेस होगा वो एलिप्स बन जाएगा। That will be an ellipse. So ellipse is the locus of all the points which are moving in such a way that the sum of the distances from the two fixed point, ये two fixed point है, always be constant. The sum of the two distances from two fixed point always be constant. इस fixed point से इस fixed point पर ये distance और ये distance, ये दोनों हमेशा same रहेंगे जब ये move करेगा, क्योंकि धागा तो उतना ही लंबा रहेगा, धागा छोटा तो नहीं होगा। हमने जब एक धागा बांध दिया, एक यहाँ लंबा सा धागा, ढीला सा धागा जो कर लंबा सा धागा बांध दिया, उसमें एक जगह हमने पेंसिल लगा दी और पेंसिल को खींचते हुए हमने इसको ट्रेस करना है, तो वो डिस्टेंस धागे की उतनी लंबाई रही, और धागे का क्या है, ये सम ऑफ द डिस्टेंसेस है फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज बी कांस्टेंट। धागा छोटा बड़ा नहीं हो रहा, धागा उतना ही रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द एलिप्स। तो ये एलिप्स की डेफिनेशन है, और ये एलिप्स की टर्मिनोलॉजी है फोकस, फोसाई, ये टू फिक्स पॉइंट होते हैं, ये वर्टिसेस वेयर द एलिप्स इज इंटरसेक्टिंग द मेजर एक्सिस, these are called the vertices, or where the midpoint of the major axis will be the center. This is the midpoint of the major axis, the center, and a line vertical to the major axis and passing through the center is the minor axis. And these are some terminology of the ellipse. Now the standard equation. Standard equation of the ellipse. X minus h whole square upon a square plus y minus k whole square upon b square is equal to 1. This is the standard equation, where h and k are the center. These are the coordinates of the center. This is the center, h and k. The coordinates of center are h and h comma k. And a is the semi-major axis. The distance from vertex to the center. The distance from vertex to the center. This is a. Up to here is the a. This is a. This is also a. ये a और ये a है. Semi-major axis. This is b. Semi-minor axis. Where major axis is 2a. Semi-major axis. Semi means half. Is equal to a. And semi-minor axis is equal to b. Center h comma k. ये सेंटर है. Vertices
ये x एक्सिस पर बन रहा है, तो x यहाँ h k है, तो ये a इधर प्लस हो जाएगा और इस तरफ a माइनस हो जाएगा और k एज इट इज रहेगा। h प्लस माइनस a कॉमा k, ये वर्टिसेस हो जाएगा। सेंटर ये हो गया, ये वर्टिसेस हो गए। और फोसाई, vertices is the vertex, sum plural of the vertex। तो एक तरफ h प्लस a होगा, ये हो जाएगा h प्लस a कॉमा k, और ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, h माइनस a कॉमा k, ये वर्टेक्स हो जाएगा। h प्लस a, ये h है, यहां से a डिस्टेंस में ऐड कर देंगे x एक्सिस पे, तो h प्लस a हो जाएगा और k एज इट इज रहा, जितनी यहाँ इसकी ऊंचाई थी वही इतनी यहाँ भी है। और इस तरफ ये माइनस कर देंगे h माइनस a कॉमा k, तो प्लस माइनस कर देंगे तो वर्टिसेस आ जाएंगे। k एज इट इज रहेगा क्योंकि k उस पर है, x एक्सिस पर बन रहा है ये। और फोसाई में भी इसी तरह ये फोकस होगा और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस c कहलाता है। सेंटर से वर्टेक्स तक का, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c कहलाता है। फोसाई विल बी इक्वल टू h प्लस माइनस c कॉमा के, h प्लस माइनस c कॉमा के। अच्छा c, यहाँ c तो नहीं है, c कैसे फाइंड आउट करेंगे, द रिलेशन बिटवीन a b, तो ये इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा। तो c कैसे फाइंड आउट करेंगे, c विल बी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। a ऑलवेज बी ग्रेटर देन b, a ऑलवेज बी ग्रेटर देन b। इन दोनों में से जो बड़ा होगा, ये स्क्वायर है बी स्क्वायर, ए और बी हम जब इसका स्क्वायर रूट लेकर ए और बी फाइंड आउट करेंगे, तो जो बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस होगा, जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस बड़ा होगा, ये मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ऑलवेज बी लार्जर देन द, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये इक्वल टू 1 होना चाहिए भाई, दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो ये फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, हमने इसको 1 लाना है, इसको हमने 1 लाना है, या जो भी नंबर होगा कांस्टेंट उससे डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। या 4 है सपोज, 4 से डिवाइड कर देंगे सबको तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पर ही हो मेजर एक्सिस, ये यूं भी बन सकता है। तो in this case major axis will be along y axis, वर्टिकल एक्सिस पर होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर था मेजर एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस पर भी हो सकता है। तो यूं हो सकता है, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये वर्टिसेस हो जाएंगे, ये v और ये v डैश, यहाँ बीच में इसका मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, दैट विल बी द सेंटर, देयर विल बी द फोकस f and there will be the focus f dash, v dash vertices, so focus always be on the major axis, foci will always be on the major axis। Abdullah Javed,
Okay. So in the standard equation, x minus h whole square upon a square plus y minus k whole square upon b square equal to 1. ये 1 होना चाहिए बेटा. ये हमेशा 1 होना चाहिए. मेजर का मतलब होता है बड़ा, माइनर का मतलब होता है छोटा. मेजर मीन्स larger and minor means smaller. So major axis always be greater than the minor axis, never be the smaller. Then if it is smaller, how it is major and then the other is minor? ये कैसे पॉसिबल है भाई कि बेटा बाप से बड़ा हो जाए? जब हम उसको माइनर कह रहे हैं, माइनर मीन्स द स्मॉल. इतनी सी अकल नहीं है और कह रहे हैं कि वो मेजर माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस से बड़ा हो गया. माइनर का मतलब ही स्मॉल है भाई. माइनर का मतलब ही स्मॉलर एक्सिस है. जो स्मॉलर एक्सिस होगा वही माइनर एक्सिस होगा. इस केस में मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इस केस में मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है. मेजर बड़ा वाला ही होगा, वो अलोंग वाई एक्सिस हो या अलोंग एक्स एक्सिस हो, बड़ा वाला ही मेजर एक्सिस कहलाएगा. छोटे को मेजर एक्सिस हम नहीं कह देंगे. सिंपल सी बात है. माइनर का मतलब स्मॉल, इतना भी नहीं पता कि माइनर का मतलब स्मॉल होता है. फिर उसके बावजूद कह रहे हैं कि इस केस में तो माइनर एक्सिस बड़ा हो गया. माइनर का मतलब ही स्मॉल होता है. अगर वो बड़ा है तो फिर माइनर नहीं कहलाएगा. So when and the foci always be on the major axis. फोकसेस जो होते हैं मेजर एक्सिस पर होते हैं, वर्टिसेस जो है वो मेजर एक्सिस पर होते हैं. ये मेजर एक्सिस है, वर्टेक्स है, ये फोकस है. ये मेजर एक्सिस है, वर्टेक्स है, फोकस है. यहाँ ये मेजर एक्सिस है, बड़ा एक्सिस मेजर कहलाएगा. हाँ वो एक्स के लॉन्ग हो, वाई के लॉन्ग हो, कहीं भी हो. तो वर्टेक्स जो है मेजर एक्सिस पर होते हैं, फोसाई भी मेजर एक्सिस पर होते हैं, माइनर एक्सिस पर नहीं होते. ये छोटा एक्सिस है, माइनर है. और ये इन दोनों में रिलेशन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये मेजर एक्सिस ये था व्हेन एक्स इसमें था ये. अब यहां पर अगर ये अलोंग वाई एक्सिस है तो फिर ये ए स्क्वायर यहां आ जाएगा. इस केस में ए स्क्वायर क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा. ये हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा. इस केस में वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इस केस में ये लॉन्ग वाई एक्सिस है तो ए स्क्वायर जो वाई वाले के नीचे आ जाएगा. ए स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा. तो जो बड़ा होगा वही ए स्क्वायर हम उसको लिखेंगे. यहाँ जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर या एच या के नहीं लिखा होगा, वहां नंबर्स होंगे. वहां क्या होंगे, नंबर्स होंगे क्वेश्चन में. ये तो इक्वेशन है, उसमें नंबर्स होंगे. नंबर जब होंगे तो नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वही हम मेजर एक्सिस कंसीडर करेंगे. इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को हम मेजर एक्सिस कंसीडर करेंगे. याद रखिए, मेजर मींस लार्जर. वो वाई एक्सिस के अगर वाई के नीचे है तो वो लॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा. और अगर वो एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो वो लॉन्ग एक्स एक्सिस इस तरह की शेप बन जाएगी. और अगर इसके नीचे वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो फिर इस किस्म की शेप बन जाएगी. तो ये हमने ट्रेस भी करना है, इसको स्केच भी करना है हमने. तो याद रखिए कि वाई स्क्वायर के वाई वाले के नीचे बड़ा नंबर है तो ये इस तरह बनेगी शेप. और हम उसमें वाई कोऑर्डिनेट में हम ऐड करेंगे. यहाँ एक्स में ऐड किया था, एक्स कोऑर्डिनेट में हमने ए प्लस माइनस किया था, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट में हम ऐड करेंगे. तो यहाँ वर्टेक्स जो होगा
कौन आ गया, M1 1 2 3 4। इस केस में वर्टिसेस और फोसाई क्या हो जाएंगे, इसमें वर्टेक्स जो है ये वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स एज इट इज रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, एच एज इट इज रहेगा, सेंटर एच के है, एच एन के, एच एज इट इज रहेगा, हमें के में हमने प्लस माइनस ए कर देना है वर्टिसेस के लिए। वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसमें ए की वैल्यू यहां से ये माइनस हो जाएगी और यहाँ सेंटर में ये प्लस हो जाएगी, ऊपर जाएगी वाई कोऑर्डिनेट में। तो वाई में हमने के की वैल्यू में यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट उसमें प्लस माइनस करेंगे। इसी तरह फोसाई भी इसमें चेंज हो जाएंगे, वो भी के कोऑर्डिनेट चेंज होगा, के प्लस माइनस सी वर्टिसेस में, एच कॉमा के प्लस माइनस ए, और फोसाई में एच कॉमा के प्लस माइनस सी, और सी एज इट इज निकालेंगे। सी का यही फार्मूला रहेगा भाई, सी का यही फार्मूला रहेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बड़ा होगा, ए स्क्वायर ही ए ही मेजर एक्सिस होगा, वो ख्वाह वाई के नीचे हो या एक्स के नीचे हो, वो बड़ा होगा, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ये बता दिया मैंने आपको, याद रखिए, वो एक्स के नीचे बड़ा नंबर हो या वाई के नीचे बड़ा नंबर हो, तो वही ए कहलाएगा जो बड़ा नंबर होगा, ए स्क्वायर होगा, और वाई के नीचे है तो उसका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा। अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। और फोसाई के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में एक्स को, अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट में एच कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस करेंगे और एच कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस सी करेंगे। अगर वाई एक्सिस है तो वर्टिसेस के लिए वाई कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस ए करेंगे, और फोकस के लिए वाई कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस सी करेंगे। अगर अलोंग वाई एक्सिस है, वो कैसे पता चलेगा अलोंग एक्सिस है वाई एक्सिस है, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा, वाई के नीचे बड़ा होगा तो अलोंग वाई एक्सिस होगा, एक्स के नीचे बड़ा होगा तो अलोंग वाई एक्स एक्सिस होगा। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर ये एक जैसे हो गए तो ये सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी भाई, याद रखिए, फिर ये सर्किल बन जाएगा। ये ए यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने बताया, और बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, जितना भी है उतना ही ये हो गया, तो ये सर्किल बन जाएगा, तो ये सर्किल बन जाएगा। फिर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से एफ तक का डिस्टेंस सी कहलाता है, सेंटर से वी तक का डिस्टेंस ए कहलाता है, और ये यहां से सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस बी कहलाता है। अगर ये बी और ए इक्वल हो गए तो ये सर्किल बन जाएगा। तो ए और बी अगर इक्वल हो गए तो सर्किल बन जाएगा, इलिप्स नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे हमने ए बी सी निकालने हैं। ओके, तो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, इसकी ये शेप है और इसकी ये शेप है। सेंटर जो होगा मिड पॉइंट होगा मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का, और ये सेमी मेजर एक्सिस, ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a होगा, इस तरह मेजर माइनर एक्सिस 2b होगा। ये हाफ है मेजर एक्सिस का, ए क्या है, हाफ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ए है, इस तरह यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो टोटल डिस्टेंस मेजर एक्सिस 2a हो जाएगा। इस तरह टोटल माइनर एक्सिस 2b हो जाए, टोटल माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा। सो माइनर एक्सिस 2b
and major axis is 2a. A is the semi major axis, B is the semi minor axis. और बड़ा वाला A होगा, छोटा वाला B होगा. इन चीजों को आपने ध्यान में रखना और इक्वल टू 1 होना चाहिए. स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी हमने, फिर हम ए बी और एच के वगैरह और सी निकाल सकते हैं. जब तक स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं होगा हम एच के भी नहीं निकाल सकते, ए बी सी भी नहीं निकाल सकते, एच के भी नहीं निकाल सकते और ए बी सी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं होगा. स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमें इक्वल टू 1 लाना होगा और एक्स स्क्वायर एक्स के साथ कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए. वो कोफिशिएंट एक्स और वाई के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नीचे होने चाहिए जो भी नंबर हो, और यहाँ इक्वल टू 1 हो. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो. ओके. So now we are doing the exercise. Now we are doing exercise 19.9. We are doing exercise 19.9. Page 596. Okay. Question number 1. X square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1. अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बताया कि देयर मस्ट बी प्लस साइन इन बिटवीन देम. नेगेटिव नहीं होगा, वह हाइपरबोला में नेगेटिव होता है, यहाँ प्लस का साइन आएगा बीच में. ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, बोथ आर पॉजिटिव. दिस वन इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 1 है भाई, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 1 है. और यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स कोएफिशिएंट्स भी 1 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए. एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट भी 1 1 होने चाहिए और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. मेजर एक्सेस हमेशा बड़ा होता है, तो ये 25 है, तो ए स्क्वायर हम 25 को लेंगे. ए स्क्वायर इज 25, सो ए कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5. ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5. करीब है.
Okay.